Welcome to Coordinate Geometry Part 12. In this part, we are going to discuss different form of the equation of a straight line. In the previous part, we already discussed about slope of a line and angle between two lines whose slopes are given. If anyone is new in this video, you must go through part 12, 13, 14. Three videos are there based on slope of a line and angle between two lines. You must go through the coordinate geometry from beginning. That will be better. In this video, let us see different form of equation of a straight line. There are 6 basic forms to represent a straight line. One by one we go through those forms. We see the derivation of those forms as well as we remember and we try to do the application of those forms to find the solution of different types of problems. So let us see one by one what are the different forms of equation of a straight line. As I said, there are 6 basic forms. So one by one, first form number 1, it is called slope intercept form. First form is slope intercept. Slope intercept form. Slope intercept form. First of all, try to understand what does it mean. In this form, we want to represent a straight line in term of its slope and intercept. Means if intercept of a line is given and its slope given, then we want to write equation of the line. In this form, you must note down it. If m be the slope, m be the slope and c be the intercept of a line intercept on y-axis. If m be the slope and c be the intercept on y-axis made by a line, then its equation is given by if m be the slope and c be the intercept on y-axis made by a line. This slope intercept form says, say in this way, x-axis, y-axis are there. According to this form, if there is a line in this way which cut in m be the slope, if there is a line in such a way its slope is m, एक लाइन है इसका स्लोप m है, and c be the intercept on y-axis made by the line. What is the intercept made by the line on y-axis? ये जो पार्ट है, ये y-axis पर जो कट कर रहा है, ये डिस्टेंस, this distance is called intercept made by the line on y-axis. This is called intercept made by the line on x-axis. So according to question, if this distance is c be the intercept made by this line on y-axis, अगर y-axis को c distance पर कट करता है और इसका slope अगर m है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c, इसको याद रखेगा।
This is the form of the line called slope intercept form. एक स्ट्रेट लाइन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर वट इज m is the slope of the line and what is the c is the intercept made by the line on y axis. So you must remember, if m be the slope and c be the intercept made by a line on y axis, then equation of the straight line can be written in this form. You can say y equal to mx plus c. This form is called slope intercept form. Okay. In another word, we can say, if equation of a line is represented in this form, whatever comes in place of m, that will gives you the slope of the line, and whatever comes in place of c will gives you the intercept of the line on y axis. So y equal to mx plus c represents a straight line, and this form of the line is called slope intercept form. Now let us see how this slope intercept form has come. Let us derive this result. Suppose this is a line having intercept c and slope m. If theta be the inclination of the line with x axis in positive direction, then tan theta is your m. Then this m will be tan theta, slope of the line. Okay. Now we take any general point on the line. Let xy be any general point on the line. Okay. Now from this general point, let us suppose this point is P, this is O, this point is A, suppose this point is B. From P, draw a perpendicular PM on x axis. Okay. Then this distance obviously x, and this height is obviously y. From A, draw another perpendicular AM on this PM. Okay. Now if you draw a perpendicular AM, then what will be this AM? ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक x है, तो ये भी वही x होगा, नहीं ये x ही होगा ना, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगा? PM। ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है? y। और ये c है, तो यहां से यहां तक भी c होगा, तो ये पार्ट क्या होगा? PM y माइनस c, y माइनस c, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस हो गया x, ये हो गया y माइनस c, ये है आपका y माइनस c, ये है x। ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसके पैरेलल है ये, दिस एंगल विल बी थीटा। नाउ इफ यू सी इन दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल में ये तो 90 है, ये थीटा है, ये x है, ये y माइनस c है, तो tan theta will be perpendicular by base. So for this theta, perpendicular is y minus c and base is x, and this tan theta is your m. So m equal to y minus c by x. Take cross multiplication and simplify it, you will get y equal to mx plus c is the equation of the line, which is called slope intercept form of the equation of the line. So you must remember, if a line make an intercept c on y axis and having slope m, then its equation is y equal to mx plus c. Okay. Line intercept c having slope m, these were the two given quantities. हमारे पास लाइन के बारे में दो ही चीज दिया हुआ था, एक उसका इंटरसेप्ट c और इसका स्लोप m।
In order to find equation, we must include general point xy. So why we have taken here a general point xy in order to find equation, and then we establish a relation between x, y, c and m. हमारा दिया हुआ क्वांटिटी था c और m, हमारा जनरल पॉइंट है एक्स वाई. तो एक्स वाई और ये दिया हुआ क्वांटिटी c और m के बीच में जो रिलेशन होगा वही इस लाइन का इक्वेशन होगा. तो ये जो किया गया है ज्योमेट्रिकली, ये वही एक्स वाई और m c के बीच में रिलेशन लाया गया है. ये इसमें x है, y है, m है, c है. ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन. So I hope you have understood what does it mean slope intercept form. Now see some example based on this. Suppose there is a line in this way, है ना, and there is a line in this way, such that this distance is suppose -3, means -3 is the intercept of the line on y axis. y axis पर intercept है -3, और ये एंगल मान लीजिए 45 डिग्री का है, ये वाला. What will be the equation of this line? Having intercept -3 means here c is your -3, and what is m? M is slope of the line. What will be slope of this line? If theta is the inclination of a line with x-axis in positive direction, then tan theta is called its slope. So what is its inclination with x-axis in positive direction? पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन ये है, तो ये एंगल कितना का होगा? ये 45 है तो ये 135 का होगा. So 135 degree is the inclination of the line with x-axis in positive direction. So slope of the line will be tan 135, and value of tan 135 is -1. So here c is -3, m is -1. So what will be equation of the line? इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं y equal to mx plus c. So y equal to -x -3 is the equation of the line. समझे बात? तो अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं. अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं. देखिए कैसे, ये समझ गए? एक मान लीजिए आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस एक्स प्लस 2 और हाँ चलिए ना, चलिए ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है. इज ए लाइन लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री एंड हेंस इट इज ए लाइन. अच्छा, क्वेश्चन इज फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. क्वेश्चन है कि ये वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करेगा, ये निकालिए और इसका स्लोप भी निकालिए. तो क्या करेंगे आप? यू एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. इसको आप इस फॉर्म में लिखिए. m के जगह पर जो आएगा वो उसका स्लोप होगा और c के जगह पर जो आएगा वो उसका इंटरसेप्ट होगा. लेट अस राइट इट इन दिस फॉर्म. y इक्वल टू mx प्लस c. तो y को इधर लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड में x को ले जाइए. ये हो गया y इक्वल टू mx, इसको भी उधर ले जाइए, प्लस -2 हो जाएगा ना उधर, तो प्लस -2. नाउ इट इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx प्लस c. m के जगह पर कितना है? m के जगह पर 1 है और c के जगह पर कितना है? -2. तो इसका स्लोप कितना हुआ? स्लोप इज 1 एंड इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज -2. मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा 1, मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ x एक्सिस मस्ट बी 45 डिग्री और इंटरसेप्ट होगा -2, यानी नीचे -2 डिस्टेंस पर कट करेगा. इस तरह से ये लाइन होगा.
और ये इसका इंक्लिनेशन जो है 45 होगा, तभी तो m का वैल्यू 1 होगा ना, 1045. तो इन दिस वे द लाइन विल बी. तो इन दिस वे इफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन वी कैन फाइंड इट्स slope as well as its intercept on y axis by expressing it in the form y equal to mx plus c, which is called slope intercept form. So I hope you have understood what does it mean slope intercept form. Now we see next. Next is means form number 2. As I said, there are 6 forms. Form number 2, it is point slope form. Let us see what is point slope form of a line. What was previous one? Slope intercept form. This is point slope form. Point slope form means from its name it is clear, a point on the line and its slope will be given. You have to write the equation of the line. एक लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ होगा और उसका स्लोप दिया हुआ होगा, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में. इफ मान लेते हैं हम लोग कि x1 y1 बी ए पॉइंट ऑन ए लाइन एंड, और मान लेते हैं कि उसका स्लोप m है एंड m बी इट्स स्लोप. मान लेते हैं कि x1 y1 लाइन में एक पॉइंट है और m उसका स्लोप है. देन इट्स इक्वेशन is given by, उसका इक्वेशन होता है y minus y1 equal to m into x minus x1 is the equation of the line. Y minus y1 equal to m into x minus x1. And this form is called slope intercept form. एक लाइन में अगर एक पॉइंट है x1 y1, समझ लीजिए ऐसे एक लाइन है, मान लीजिए ऐसा एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1 और इसका स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप है m. तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग इस पॉइंट और स्लोप के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं, y minus y1 equal to m into x minus x1. If x1 y1 be the point and m be the slope of the line, then equation of the line can be written as y minus y1 equal to m into x minus x1. And this form of the equation of the line is called point slope form. समझ गए बात? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका स्लोप दिया हुआ है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. कैसे? देखिए, इसमें भी इक्वेशन निकालने के लिए एक जनरल पॉइंट का जरूरत पड़ता है. किसी भी चीज का इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें एक्स वाई होगा ना, तो एक्स वाई लाइन में एक ले लिए पॉइंट. जनरल पॉइंट मतलब ये पॉइंट यहां 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 कहीं भी हो सकता है. और उसमें दिया हुआ चीज क्या है? लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और उसका स्लोप दिया हुआ है.
आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। मतलब दिया हुआ जो क्वांटिटी है x1 y1 m और ये जनरल पॉइंट xy के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। आप जैसा चाहे, कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, आप x y x1 y1 और m के बीच में एक ज्योमेट्रिकली रिलेशन एस्टेब्लिश कर दीजिए, वो इस लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बहुत सारे तरीका हो सकता है रिलेशन एस्टेब्लिश करने का। हम लोग एक तो ये तरीका लेते हैं, यहां से इसको परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ये पूरा डिस्टेंस है x, यहां तक है x1, तो ये पार्ट होगा x माइनस x1, ये बराबर होगा। ये पूरा हाइट है y, ये है y1, तो ये पार्ट तो होगा y माइनस y1। इसका स्लोप m है, हम लोग मान लेते हैं इसका x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन तो कुछ होगा थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नहीं? ठीक है, तो m इज योर tan थीटा, नहीं? एंड व्हाट विल बी m? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m tan थीटा है ना, दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर बाय बेस, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये क्या है? इसमें x है, y है, x1 है, y1 है, m है, तो इज ए रिलेशन बिटवीन x1 y1 xy एंड m। तो ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन, और इसको बोला जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो कोई पॉइंट अगर x1 y1 पॉइंट से पास करता है और उसका स्लोप m है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, which is called point slope form of a line। जैसे एग्जाम्पल, एक लाइन है, ये मान लीजिए एक पॉइंट 23 से पास करता है, द लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट 23, है ना, एंड इट्स इंक्लिनेशन इज सपोज कुछ भी ले लीजिए, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा m, वुड विल बी m tan 30, इज नॉट इट? tan 30 1 by root 3 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1, दिस इज योर x1 y1 इक्वल टू m, दिस इज योर m इंटू x माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक लीनियर इक्वेशन आएगा xy का, ये लाइन का इक्वेशन होगा। इन दिस वे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और ये जो लाइन को लिखने का जो फॉर्म है, जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, एक और फॉर्म देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। 6 फॉर्म है, एक वीडियो में 3 फॉर्म, दूसरे वीडियो में 3 फॉर्म देखते हैं, है ना। लेट अस सी वन मोर फॉर्म, नंबर 3 in this video। फॉर्म नंबर 3, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा था पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। राइट डाउन, इफ A and B are the intercepts made by a line on the coordinate axis ax, es
एक्सिस ये प्लूरल है, माने दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स आई एक्स लिखते हैं तो सिंगुलर है एक एक्सिस. इफ ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय, इसका इक्वेशन होता है, याद रखना है आपको, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. ये होगा आपका लाइन का इक्वेशन. इफ ए लाइन मेड इंटरसेप्ट स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जो दोनों एक्सिस पर ए और बी इंटरसेप्ट कट करता है. ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट माने ये और ये, यानी ये डिस्टेंस, दिस इज इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस, एंड दिस डिस्टेंस is the intercept made by the line on y axis. तो ये x axis और y axis पर इंटरसेप्ट अगर a और b है एक लाइन का, तो उस लाइन को हम लोग ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. और ये जो फॉर्म है लाइन को लिखने का, दिस फॉर्म इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको. समझ गए बात? अगर किसी लाइन को आप इस तरह से लिखते हैं x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो a और b के जगह पर जो नंबर आएंगे, जो क्वांटिटी आएगा, दैट विल गिव्स यू इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. लाइन को इस तरह से लिखिएगा तो a और b के जगह पर जो आएगा वो x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा. और a और b अगर इंटरसेप्ट है तो लाइन का इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 कर दीजिए. लेट अस सी इट्स डेरिवेशन. इसमें भी दिया हुआ क्वांटिटी क्या है, आपके पास दो चीज दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. ठीक है, आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है. तो इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा एक पॉइंट ले लीजिए इसमें, xy. Let xy be any general point on the line. Let us suppose this point is A, this point is B, and this point is suppose P. P be any general point on the line. Clear? In order to write equation of this line, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को A, B, X और Y के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जिसमें a होना चाहिए, b होना चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए. देन दैट विल गिव्स यू इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, तो इसके लिए आप यहां से इधर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए और इधर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए. ठीक है, और इसको मिला भी दीजिए. अब देखिए यहां तीन ट्रायंगल है. एक ये ट्रायंगल, आप ट्रायंगल तो बहुत सारा है, ये एक ट्रायंगल देखिए, ये तीन ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये एक दूसरा ट्रायंगल और एक ये तीनों बड़ा, ये तीसरा ये बड़ा ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का सम, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया को अगर ऐड करेंगे तो इस बड़ा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा. ठीक, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस छोटा वाला का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसका बेस क्या है और हाइट क्या है, ये क्या होगा, ये पॉइंट एक्स वाई है ना, तो ये वाई होगा. ये हो गया इसका एरिया, प्लस इसका एरिया लेते हैं. इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, b, और हाइट क्या होगा, ये वाला, ये क्या है,
ये तो बराबर होगा ना x. दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये OAB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसके लिए बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया. ठीक है, देखिए सब में ये ये हाफ कट जाएगा, तो आपको मिलेगा AY प्लस BX इक्वल टू AB. आप दोनों साइड AB से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AB. तो यहां नीचे AB आएगा तो क्या बचेगा, यहां नीचे AB आएगा तो क्या बचेगा, और इधर ये पूरा कट जाएगा. तो ये आ जाएगा x बाई A प्लस y बाई B इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो अगर एक लाइन का x एक्सिस पर इंटरसेप्ट A है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट B है, तो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x बाई A प्लस y बाई B इक्वल टू 1. जैसे एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक लाइन ऐसा है, इसका x एक्सिस पर इंटरसेप्ट -2 है, y एक्सिस पर -3 है. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा x बाई A मीन्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y बाई B मीन्स इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके जो आएगा उस लाइन का इक्वेशन होगा. समझ गए बात. एक लाइन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. ये एक लाइन. फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये लाइन का x एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या होगा, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या होगा, ये आपको निकालना है. कैसे करेंगे, इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे. a के जगह पर जो क्वांटिटी आएगा दैट विल गिव्स यू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और b के जगह पर जो आएगा वो होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. तो इसको लिखिए, इसको लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. राइट साइड में 1 चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए. तो x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1. नाउ इट इज, you see it is in this form, x by A plus y by B equal to 1, and hence इस लाइन का x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 होगा, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 होगा. इस तरह से ये लाइन होगा. तो इन दिस वे, by expressing it in intercept form, we can find its intercept on the coordinate axis. And if intercept of a line given, we can write its equation by using x by A plus y by B equal to 1. So we read today 3 forms. First is slope intercept form. It is y equal to mx plus c. Second is point slope form. If point given, slope given, its equation can be written as y minus y1 equal to m into x minus x1. Third is intercept form. If small a and small b are the intercept on the coordinate axis, then its equation can be written as x by A plus y by B equal to 1, which is called intercept form. So slope intercept form, y equal to mx plus c. Point slope form, y equal to y minus y1 equal to m into x minus x1. And intercept form, x by A plus y by B equal to 1. So these are the 3 forms today. There are 3 more forms are there, which will be discussed in the next video, part 15. So in this video, this much. Thank you for watching.